امریکہ اور ایران نے 60 روزہ جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق کر لیا۔ توسیع کتنی مدت کے لیے ہوگی ابھی طے نہیں ہوا۔ العربیہ ٹی وی کا دعویٰ، امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کی مدت آج ختم ہو رہی ہے۔ جنگ بندی کے دوران بھی امریکہ اور ایران کے درمیان جھڑپیں جاری رہیں۔ دونوں ممالک ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کے الزامات عائد کرتے رہے۔ امریکی صدر کی آبنائے ہورمز میں مداخلت پر عمان کو شدید بمباری کی دھمکی، پاسداران انقلاب کے ساتھ بیک چینل روابط کا دعویٰ کر دیا۔ ایرانی اچھے جواری مگر ان کے دن کم رہ گئے، ڈونلڈ ٹرمپ نے ہار مان کر سفید جھنڈا لہرانے کا مشورہ بھی دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ اور پاسداران انقلاب نے خفیہ بات چیت کی سختی سے تردید کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا حالیہ جنگ میں دشمن کے 200 طیارے اور ڈرون تباہ کرنے کا دعویٰ۔ جنگ میں ایران تقسیم ہوا، نہ اس کے نظام کو نقصان پہنچا۔ میجر جنرل مصطفیٰ ازدی کا بیان، سفارتکاری ناکام ہوئی تو ایران دفاعی نہیں جارحانہ حکمت عملی اپنائے گا۔ سینئر ایرانی عہدیدار کی رائٹرز سے گفتگو۔ ایران نے مبینہ طور پر قطر میں گرفتار 3 پائلٹس کی تصاویر جاری کر دیں۔ 4 پائلٹس قطر میں امریکی اڈے پر حملے کے بعد لاپتہ ہوئے تھے۔ ایرانی کمانڈر بریگیڈیئر جنرل محمد باقر زادہ کے مطابق پائلٹ مجید قاسمی شہید ہو گئے، جن کی ایران میں تدفین کی جا چکی، 3 قطر کی تحویل میں ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم، مشرق وسطیٰ کا متحد ہونا خوش آئند قرار دے دیا۔ تینوں ممالک کی قیادت کو مبارکباد۔ سعودی عرب، ترکی اور پاکستان کے درمیان مشترکہ دفاعی معاہدہ اس بات کا مظہر ہے کہ یہ ممالک زیادہ مؤثر انداز میں اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوں گے۔ امریکی صدر نے دفاعی معاہدے کو بڑا جرأت مندانہ اور اہم قدم قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کا مکہ دفاعی معاہدے کی حمایت میں امریکی صدر کو خراج تحسین۔ عوام کے روشن اور خوشحال مستقبل کے لیے پائیدار امن اہم اور بنیادی شرط ہے۔ مکہ دفاعی معاہدے کے تحت دونوں ممالک سے مل کر اپنا اور خطے کا دفاع یقینی بنانے کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے۔ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر امریکی صدر کی حمایت کو سراہتے ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں ایٹمی تباہی ٹالنے اور لاکھوں زندگیاں بچانے میں مدد کی۔ شہباز شریف کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حاکان فیدان سے ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا علاقائی چیلنجز سے نمٹنے اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری آگے بڑھانے پر زور۔ صوبے بننے چاہیے، کیوں؟ لاجک کیا ہے کیوں بننے چاہیے؟ اس لیے کہ موجودہ صوبے جو ہے وہ ہمارا نظام نہیں صحیح طرح چلا رہے ہیں۔ سو بیسیکلی کوئی جماعت پاور کو نیچے ڈیوالو نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ کے فور فادرز نے، آئین بنانے والوں نے یہی کنسیو کیا تھا۔ ہم لوکل پارٹیز کے اس نظام کو امپاور کریں۔ بھائی اگر تو اس نظام کی صورت میں خرابی ہے، قانون میں خرابی ہے، تو قانون تبدیل کر لیتے ہیں۔ نئے انتظامی یونٹ کے قیام کے لیے قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی کوششیں۔ ایس ڈی پی آئی کے زیر اہتمام قومی مباحثہ۔ قمر زمان کائرہ نے نئے صوبوں کی بحث کے دوران دوریاں نہ بڑھانے کا مشورہ دے دیا۔ بلدیاتی نظام کو با اختیار بنانے کی تجویز۔ فواد چوہدری آبادی کے لحاظ سے نئے انتظامی یونٹس کے قیام کے حامی۔ نئے انتظامی یونٹس بننے سے براہ راست عوام کو فائدہ ہو سکے گا، سینئر سیاستدان کی رائے۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر سیف نے نئے صوبوں کے لیے نیشنل کمیشن بنانے کی تجویز دے دی۔ نئے صوبوں کے قیام سے فنڈز کی بہتر منتقلی ہو سکے گی، مصطفیٰ کمال کا اظہار خیال۔ دیکھیے، جو ڈسٹرکٹ اپنے صوبائی دارالخلافہ سے جتنی دور ہے وہ اتنا زیادہ پسماندہ ہے۔ کہ مجھے جو آج جو سب سے بڑا فیئر جو میں نظر آتا ہے کہ یہ جو سمٹمز میں ذکر کر رہا ہوں، اس کا جو اینڈ ہے نا، آپ گراؤنڈ پہ آپ سے لوگ ناراض ہو رہے ہیں۔ جو قوتیں یا جو لوگ، جو اتھارٹیز اس صوبے کے نئی ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی مخالفت میں بات کرتی ہیں، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ بھئی آپ کا پیسہ جو آپ کو مل رہا ہے یہ آپ کو اتنا ہی ملے گا، مجھے لگتا ہے کہ ان کو اعتراض
नए सूबों के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी बरहम, जो मर्जी कर लें सिंध में सूबा नहीं बनेगा। सूबे बनाना पार्लियामेंट, सियासी जमातों और सूबे में रहने वालों का काम है। सईद गनी का दो टोक पैगाम। वफाकी वजीर दाखिला की सिंध में सूबे की बात करने की क्या हैसियत। DGI-SPR का ये काम नहीं कि बताएं कि सूबे बनने हैं या नहीं। सिंध के वजीर मेहनत की गुफ्तगू। बानी पीटीआई की एक आंख तकरीबन नॉर्मल हो गई। सरकारी मुआलजीन चेकअप भी करते रहे। बानी पीटीआई और उनके अहलिया की हर मंगल को जेल रूल्स के मुताबिक बाकायदगी से मुलाकात कराई जाती है। बानी पीटीआई और अहलिया की अब तक 84 मुलाकातें कराई जा चुकी। बानी से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक करके हुक्म के खिलाफ वर्जी की गई। फॉरेन पॉलिसी, अदलिया और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ अवामी जज्बात उभारे गए। मेडिकल ऑफिसर्स बानी पीटीआई के खाने पीने के दिन में 3 से 4 बार जांच और मेडिकल चेकअप करते हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुकदमे को निपटा दे। सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में 2 सफात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जमा करा दी गई। राना सनाउल्लाह का बानी पीटीआई से मामूल की मुलाकातों का दावा। वो अदालती तहवील में हैं, अदालत ही मुलाकातों का तय करती है। उनकी आंख की तकलीफ पर बेहतरीन इलाज फराहम किया गया। वजीर आजम की मुशीर का सेनेट में इजहार ख्याल। इतनी मुलाकातें तो उनके घर पर नहीं हुई जितनी जेल में कराई गई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का ऐवान बाला में बयान। चूहे बिल्ली वाले खेल को ख़त्म करो। खान साहब को एक्सेस दो, डॉक्टरों को उसकी ज़ाती मुआलजीन को फिल फॉर एक्सेस दो और उनको शिफ्ट कर लो ताकि ये कंसर्न ख़त्म हो। और ये कंसर्न नहीं, ये एक बहुत सीरियस वायलेशन होगी। खान साहब के सेहत के बारे में कोई भी लैप्स पाकिस्तानी अवाम को एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बैरिस्टर गौहर का बानी पीटीआई से मुतालिक रिपोर्ट पर इजहार तशवीश। वाज़ेह कर दिया कि बानी की सेहत से मुतालिक कोई भी गफलत काबिल कबूल नहीं। कहा चूहे बिल्ली का खेल बंद करके बानी से उनकी फैमिली और ज़ाती मुआलजीन की मुलाकात करवाई जाए। इसहाक डार की क़यादत में नून लीग की वफ्द की इस्लामाबाद में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की रिहाइश का आमद। वालिदा के इंतकाल पर फातिहा ख्वानी, सोगवार खानदान के ताज़ियत का इजहार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पंजाब में लीगी हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात आयद कर दिए। पंजाब में हुकूमत के पास दिखाने के लिए सिर्फ सड़कें हैं। 17 पंजाब प्रोग्राम, करप्शन पर कोई जवाब नहीं दिया गया। हसन मुर्तजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अस्मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी की जानिब से पंजाब हुकूमत पर करप्शन के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। जिस सूबे में एक सड़क पर 8 अरब की करप्शन हुई, वो दूसरों पर इल्ज़ाम लगाएंगे। स्कैंडल सिंध में होते हैं, पंजाब में नहीं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात ने बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाने वालों को अदालत ले जाने का इशारा दे दिया। की वज़रा बात कर रहे हैं, इसमें मैं सबको एक एक का नाम लेके बता सकता हूँ। ये सब फॉर्म 47 वाले, इतनी हिम्मत भी नहीं है। अभी आए बात करें, कौमी असेंबली का इजलास है, यहाँ पर कोई बात करे ना वज़रा, हम देख लेते हैं, पता चल जाएगा। और टिकटॉक जो उन्होंने कहा है ना, वो उल्टी गिनती शुरू हुई है, वो ऐसी बिलावल साहब ने नहीं कहा है। वो जब जो कहते हैं उसके पीछे कोई बात होती है। नबील गलबोल ने लीगी हुकूमत की उल्टी गिनती दिसंबर तक पूरे होने का दावा कर दिया और कहा कि ये पीपल्स पार्टी को छेड़ेंगे तो पीपल्स पार्टी इन्हें भी छेड़ेगी। नए सूबों की बात करने वाले फॉर्म 47 पर आए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा का तंज। पेट्रोलियम लेवी में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी की अपील पर मुल्क भर में धरनों का दूसरा रोज। लेवी के नाम पर गरीब आवाम का माशी कत्ल किया जा रहा है। मोटरसाइकिल चलाने वाले लेवी का भत्ता दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान का लाहौर में खिताब। कराची में गवर्नर हाउस के बाहर जमात इस्लामी के कारकुनों का धरना जारी। 130 रुपए इजाफी भत्ता टैक्स लिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, इसकी क्या जस्टिफिकेशन है? अब ये जो लेवी वसूल कर रहे हैं, ये कौन दे रहा है? मोटरसाइकिल चलाने वाला। वो तबका तकरीबन 15 से 20 हजार रुपए गवर्नमेंट को ये लेवी का भत्ता अदा करता है।
जिला रावलपिंडी में पाक फौज की तैनाती के लिए असम्बली तैयार। वजीर आजम और वफाकी काबीना की मंजूरी से फौज की तैनाती की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने 6 माह के लिए फौज की 3 कंपनीज की तैनाती मांगी है। खैबर पख्तूनख्वा में 14 साल या उससे जायद उम्र का शख्स रेडी लगा सकेगा। केपी असम्बली में 1,40,000 से जायद रेडी बानों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने का बिल मंजूर कर लिया गया। पेशावर हाई कोर्ट के 4 मुस्तकिल होने वाले जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस SM अतीक शाह ने जजेस से हलफ लिया। 4 जजेस पेशावर हाई कोर्ट के मुस्तकिल जज बन गए। हलफ बर्दारी तकरीब में जुडिशल ऑफिसर्स, एडवोकेट जनरल, बार के सदर और वकला की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोहर पर तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार खातून की जमानत पर फैसला महफूज। खातून ने अपने शोहर को 3 मरतबा तशद्दुद का निशाना बनाया। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी मौजूद हैं। वकील के दलाइल पर अदालत में कहे लग गए। क्या ये खातून कोई कमांडो है? जस्टिस खादिम सोमरो का सवाल। अगर औरत ने गुस्से से मारा भी है तो वो घर की मालिक है। वकील सफाई के मौक़िफ़ पर अदालत में फिर कहे। जस्टिस खादिम सोमरो भी मुस्कुरा दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतनाज़ ट्वीट केस में PTI रहनुमा सिमाबिया ताहिर के खिलाफ पैका मुकदमा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सिमाबिया ताहिर की अबूरी जमानत में तौसीक़ कर दी। फरीक़ैन से आइंदा समाअत पर तफसीली दलाइल तलब। मीर रजा कत्ल केस की उलझी गुत्थी सुलझाने की कोशिशें तेज। 29 जुलाई को सबसे पहले लाश किसने देखी? पुलिस और एम्बुलेंस कब पहुंची? CCTV फुटेजेस सामने आ गई। वॉइस रिकॉर्डेड कैमरों की फुटेजेस भी हासिल करने की कोशिशें। तफ्तीशी टीम को मीर रजा की जानिब से दिफाई फायरिंग का भी शुबहा। दोनों हाथों पर गन शॉट के शवाहिद मिले। जियो फेंसिंग में कुछ मशकूक नंबर्स भी सामने आ गए। सानिहा ज़ियारत की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने काम शुरू कर दिया। शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन मालूमात रखने वाले शहरियों को कमीशन के सामने पेश होने की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके कली ज़ाइक में इंटेलिजेंस इतलात पर ऑपरेशन। 2 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद जख्मी। हलाक होने वाले दहशतगर्दों में मुश्ताक उर्फ कोहियार भी शामिल। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में मुलजिमान की सरेआम जदीद असलहे से फायरिंग की CCTV फुटेज सामने आ गई। फायरिंग से 16 साल लड़का जख्मी। मुलजिमान ने पिस्तौल के बट मारकर वालिद को भी जख्मी कर दिया। पेशावर में थाना रहमान बाबा की हुदूद में फायरिंग के वाक़ये में मुलव्विस 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। कराची में 22 करोड़ रुपए की चोरी का मास्टरमाइंड साथी समेत लाहौर से गिरफ्तार। मुलजिम मेहताब गुलशन इकबाल में होने वाली चोरी के केस में पुलिस को मतलूब था। कोटअद्दू की मुजफ्फरगढ़ कैनाल में डूबने वाले मजीद 3 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। मरने वालों की मजमूई तादाद 15 हो गई। 8 रोज बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। बारातियों से भरा लोडर रिक्शा मुजफ्फरगढ़ कैनाल में गिरने से 26 अफराद डूबे। 11 को फौरी बचा लिया गया था। फैसलाबाद में बेटा पैदा न होने के गम में वालिदैन ने नौमौलूद बच्ची को 15,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस ने माँ बाप और बच्ची खरीदने वालों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पीरोधाई में घर में पानी दाखिल होने पर फंसे 5 अफराद को रेस्क्यू एहलकारों ने बाहिफाजत निकाल दिया। मुमताज़ टाउन में घरों में पानी भरने से शहरियों का कीमती फर्नीचर तबाह हो गया। सियालकोट और सवाबी में भी बादल बरस पड़े। तूफानी बारिश से सड़कें डूब गईं। अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट।
कराची में इंटर प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के सालाना नताइज का ऐलान। पहली पोजीशन 3 उम्मीदवारों को मुश्तरका तौर पर मिली। आदमजी गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के मोहम्मद साद आदिल, अब्दुल्लाह जमाल और बहरिया कॉलेज की तालिबा आयशा राशिद 1000 नंबर लेकर पहली पोजीशन की हकदार। आदमजी साइंस कॉलेज के मोहम्मद अहमद रजा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। दिल्ली गवर्नमेंट कॉलेज के हाफिज अब्दुल राफे और अनस जावेद ने मुश्तरका तौर पर तीसरी पोजीशन अपने नाम कर ली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान $5.25 अरब की बाहमी तिजारत। पाकिस्तान की सऊदी अरब के लिए बरामदात कम और दरामदात ज़्यादा रहीं। सऊदी अरब से 2025-26 में पाकिस्तान की दरामदात $4 अरब 6 करोड़ रहीं। मोदी सरकार को एक और सिफारती धचका। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने भारत जाने से इनकार कर दिया। बांग्लादेश का भारतीय प्रॉक्सी शेख हसीना की हवालगी का मुतालबा। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक हसीना वाजिद की हवालगी तक वज़ीर आज़म तारिक रहमान भारत का दौरा नहीं करेंगे। अमरीकी रियासत इंडियाना पोल्स में खालिस्तान रेफरेंडम में हज़ारों सिखों की शिरकत। बड़ी तादाद में सिखों ने वोटिंग में हिस्सा लिया। सिख मुजाहिरीन ने इंडियाना में इज्तिमाई तौर पर भारतीय परचम को फाड़कर नफरत का इजहार किया। इंडियाना पोल्स में खालिस्तान के झंडे लहराते नजर आए। अमरीकी नुमाइंदा जेरेड कुशनर और गाजा पीस बोर्ड के आला नुमाइंदे की इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक बेंजामिन नेतन्याहू को बताया गया कि ट्रंप अमन मंसूबे पर अमल दरामद चाहते हैं। हमास के गैर मुसल्लह होने तक गाजा में तामीर नौ शुरू न करने पर इत्तेफाक। यमनी हूसियों का सऊदी जंगी बहरी जहाज को निशाना बनाने का दावा। हूसी तर्जुमान के मुताबिक फौजी सामान ले जाने वाले जहाज को मखा बंदरगाह के करीब मिसाइलों से निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक यमन में सरकारी फोर्सेस की कार्रवाइयों में 200 हूसी मारे गए। सोमालिया के करीब मुसल्लह अफराद ने बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का अलर्ट जारी। जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत सियोल में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज। मुजाहिरीन का अमरीका और जनूबी कोरिया की सालाना मुश्तरका फौजी मशकें रोकने का मुतालबा। इंडोनेशिया की पहाड़ी पर आतिश फिशां फट गया। आसमान पर काले बादलों ने डेरे डाल दिए। आतिश फिशां से 8 बार धमाकों के बाद लावा बाहर निकलते हुए देखा गया। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयरस में हजारों सुपर हीरो और डिज्नी किरदार सड़कों पर निकल आए। मोटरसाइकिल सवार खिलौने लेकर अस्पताल भी पहुंचे। बच्चों में खिलौने तकसीम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हैडिंगले क्रिकेट ग्राउंड में प्रैक्टिस सेशन। कोचेस ने खिलाड़ियों को इंग्लैंड के कंडीशन के मुताबिक ट्रेनिंग करवाई। पाक इंग्लैंड 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच बुध से शुरू होगा। स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने रिटायरमेंट के इशारे दे दिए। मुमकिन तौर पर आइंदा साल फुटबॉल करियर का आखिरी साल करार दे दिया।